today's lecture, many of them are asking me and I'm replying all of them. Okay. What I'll be doing is normally as during orientation, it was told to you all that before the test, we'll be having doubt solving or revision lectures, right? So normally, there would be many sums, like if today I start solving or take a doubt solving lecture, definitely we'll find many students might be having different doubts. If not possible, I can clarify all your doubts in this lecture. I have been telling you all always in my lectures that make sure that whatever doubts you have, because tomorrow's test of geometry would be on entire chapter. And in a chapter, we have more than 50 sums. So different students might be having different doubts. And I feel each and every child's doubt is important. So that is our duty to clarify. So do one thing, if you have any doubts, make sure that in today's lecture, if your doubts or what I have done, I specifically tell you, I have taken few very, very important sums, जिनमें सबसे ज़्यादा doubts आते हैं बच्चों को. And I will also tell it to you that आज के lecture में जितने भी sums हम करने वाले हैं, make sure that you practice it to perfection. So that test would be very easy. Related sums होंगे सारे. And formula based है तो problem नहीं होगा. Okay. Apart from this sums, if you have any doubts, other doubts which you feel your doubt is not solved in the lecture, make sure that you post your doubts in the WhatsApp group and the heads will automatically forward it to us. And आज के रात में सारे doubts हम clear करा देंगे. Okay. And believe me students, my entire team, geometry teachers, we have a team of teachers who are ready for doubt solving. Is it clear to all of you? It is not only me who will be solving doubts. Our entire team of geometry teachers are ready to solve all your queries. Is it clear? Fine. So what will we do is, I'll try to cover most probably the most important sums which I feel you have a doubt, because इतने सालों के experience में पता चलता है doubt कहाँ पर आता है. And कौन से sums में doubts नहीं होगा. ऐसा नहीं कि बाकी sums में doubts नहीं होता है. तो यही मैंने बोला कि WhatsApp पे भेज दीजिएगा. Done? So we'll start all of you. अब सबसे पहले डाउट मैंने जो सुना है बहुत सारे बच्चों से, वो है कि 7.4 एरिया ऑफ सेगमेंट के सारे सम्स किए नहीं है, तो वो होगा कि नहीं होगा. स्टूडेंट्स, द चैप्टर इटसेल्फ इज दिस वे कि हम एक सम करते हैं, बाकी सम्स आपको प्रैक्टिस करना है. बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा. आपको एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आता है, वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट करना है. तो आज भी एक सेगमेंट का एक सम लेने वाले हैं एंड फॉर्मूला बेस्ड है. तो फॉर्मूला सबसे पहले आपको आता है कि नहीं आता है, ये इंपॉर्टेंट है. ओके. सो नेहा हांडे फ्रॉम घाटकोपर, योर डाउट इज बीइंग क्लैरिफाइड. आज एक सेगमेंट का सम जरूर होगा, डोंट वरी. ओके. या प्रैक्टिस सेट 7.4 में डाउट है. प्रैक्टिस सेट 7.1 की कोई क्वेश्चन में किसी को डाउट होगा? शिवानी, अगर मैं आज कर पाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं. देवांग फ्रॉम विक्रोली, I have told it to you all very clearly in last lectures also, फ्रस्टम पर बेस्ड कोई भी सम नहीं पूछा जाएगा. फ्रस्टम मैंने डेलिबरेटली बाद में रखा है, वो अभी कंप्लीट नहीं करने वाले हैं. ओके. So now we'll start, okay, one by one with the sums based on few topics. Now, आज के लेक्चर में जो जो सम्स होंगे उसी टाइप से रिलेटेड बहुत सारे सम्स आप पेपर में पा सकते हो. तो मेक श्योर दैट ऑल योर डाउट्स आर क्लैरिफाइड हियर. प्रॉब्लम सेट का फर्स्ट सम, सब क्वेश्चन 8, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब. नाउ हियर प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ क्यूब whose side is given. Okay. No, so I'm so sorry. Find the side बोला है जिसका वॉल्यूम दिया है. So volume of cube is 1 meter cube. This is given to us, and we have to find the side. Now tell me students, what is the formula to find volume of cube? Because volume दिया है तो side का specifically कोई formula नहीं है. Do we have any formula for side of cube? No, but we have a formula for volume of cube. So we'll do volume of cube का formula. What is the formula for volume of cube? Yes, volume of cube is equal to side cube. बराबर.
Yes, very good, Shreyas from JB Nagar. L cube जो आपने बोला, that is also right, but we write side cube. Now volume of cube we know it is 1. So volume of cube के नीचे 1 लिखा है, is equal to side. Side हमें पता नहीं, तो side cube will remain side cube only. Is it clear? But now if you see हमें side find करना है, so we have to get rid of this cube. ये raised to 3 नहीं चाहिए हमको, तो अगर raised to 3 निकालना है, तो what we have to do? We have to take the cube root. So now side is equal to cube root of 1. ये क्यों आया cube root? Because हमें cube निकालना है. अगर cube निकालना है तो cube root लेना पड़ेगा. तो cube root of side cube is side and 1 का cube root is cube root 1. Is it clear? Now 1 का cube root is 1. So we can say therefore side is equal to 1 meter. Is it clear to all of you? But now if you see all the options in the question, all the options are in centimeter. That means 1 meter is not our answer. We want the answer in centimeter. So meter को centimeter में convert करना है. We all know 1 meter is 100 centimeter. Yes, very good. Many are replying also. So 1 meter is nothing but 100 centimeter. So side is equal to 100 centimeter. So if side is 100 centimeter, which option is correct? Yes, option C is correct. Is it clear to all of you? So now, students, what I want you to understand from this, in tomorrow's test, you will be having MCQ based question. What I want from all of you is, I don't want the entire solution of the sum. I just want you all to write down the question number, सब क्वेश्चन नंबर या क्वेश्चन नंबर जो भी है वो लिखना है, एंड देन जस्ट राइट डाउन द ऑप्शन विद द आंसर. जैसे कि इफ इन दिस सम आई हैव टू राइट, आई विल राइट मेन क्वेश्चन 1 सब क्वेश्चन 8 ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर. दैट्स इट. इतना लिखने पर 1 मार्क वी विल गेट. ये आपको आंसर कैसे आया वी विल नॉट रेक्टिफाई. ये आंसर राइट है तो राइट है, अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग है. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? I hope all of you have understood about MCQ. अच्छा, कल के टेस्ट में इसी टाइप का सम आएगा, हाँ, बट वैल्यूज चेंज होंगे. सो मेक श्योर दैट ये टाइप पता होना चाहिए. मतलब वॉल्यूम दिया है, साइड फाइंड करना है. सो आई एम गिविंग यू अ वेरी क्लियर हिंट टू ऑल ऑफ यू सो दैट यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. बिकॉज ऑनलाइन लेक्चर सिखा रहे हैं, आप लोग मेहनत भी बहुत कर रहे हो, वो दिख ही रहा है. ओके, नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट सम. नाउ प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू. A metal parallelopipe of measure 16 into 11 into 10. This is the given information. Okay. Now if you see this, I have been telling you, सबसे पहले ये मेरे metal parallelopipe है, मतलब cuboid है. So we'll have a figure of this. Now 16 centimeter into 11 centimeter into 10 centimeter. ये format जब आता है ना, always remember, first is always length, second is always breadth, and third is always height. Is it clear to all of you? So now length is known 16 centimeter, breadth is 11 centimeter, so B is 11 centimeter, and height is 10 centimeter. This is given to us. What is the other information? Now this cuboid was melted to make coins. Now first of all, students, I want you to understand what is the shape of a coin. Okay, yes, we know the shape of a coin is cylinder. Is it very clear to all of you? Now this cuboid is melted to form coins. मतलब इससे एक ही coin नहीं बना है, बहुत सारे coins बनाए हैं. Now the dimensions of the coins are given to us. Let us see about the dimensions, what is given to us. Here, the diameter of the coin is given 2 centimeter. Now diameter is 2 centimeter given to us. That means a radius हम easily find कर सकते हैं. Radius would be 1 centimeter. Clear to all of you? अच्छा, thickness दिया है 2 millimeter. Thickness मतलब height of the coin. Thickness is 2 millimeter. Now millimeter को convert करना पड़ेगा centimeter में.
क्यों? बिकॉज पूरे क्वेश्चन में सब जगह यूनिट सेंटीमीटर है, सिर्फ एक ही जगह मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। इज इट क्लियर? कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिलीमीटर is 1/10 centimeter. 1 millimeter is 1/10 centimeter. So 2 millimeter means 2/10 and 2/10 मतलब 0.2 centimeter. Is it clear? Yes, Preet. The sum is already taught to you all. We are just revising it. Okay. So just check. ज़्यादा टेंशन मत लेना क्या है. Of course, जो भी होगा WhatsApp पे we can discuss over it. Okay. Now, please pay attention. देखो टेक्स्ट बुक में मिस्टेक 20 मिलीमीटर हो सकता है, 20 मिलीमीटर कैन बी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 मिलीमीटर. नाउ अकॉर्डिंगली प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी डायमेंशंस दिए हैं उसके हिसाब से सोचना चालू करेंगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फाइन. नाउ पे अटेंशन. हाउ मेनी कॉइन्स वर मेड? सो क्वेश्चन इज, हमें कॉइन्स कितने कॉइन्स पूछे हैं. Now metal parallelepiped is melted and is converted into coins. मतलब जो क्यूबॉइड है उसको मेल्ट किया है और मेल्ट करके उसके बहुत सारे कॉइन्स बनाए गए हैं. Got it? So now understand. First question is, I want you to understand what you can say about the coins. Okay? Students, we know the parallelepiped is melted and coins are made. मतलब दोनों के वॉल्यूम के बारे में हम बोल सकते हैं कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा. बराबर है? किसका वॉल्यूम इक्वल होगा? क्यूबॉइड का और वो सारे कॉइन्स का मिलाकर. अब कितने कॉइन्स है पता नहीं. सो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी कॉइन्स वर मेड, सो वी विल से लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स बी n. तो जितने भी कॉइन्स बने उसका नंबर क्या बोला है? n. सो सारे कॉइन्स का मिलाकर जो वॉल्यूम है और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा. यस रुद्राक्षी फ्रॉम DN नगर, वेरी गुड. आपने फॉर्मूला टाइप किया, दैट्स वेरी गुड. n into वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. परफेक्ट. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? बिकॉज जितने भी कॉइन्स है उसका टोटल वॉल्यूम, तो हमें कॉइन्स पता नहीं है कितने हैं. सो n into वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. So n into volume of coin. Coin is cylindrical in shape. So pi r1 square h1. यहाँ पर r1 और h1 क्यों लिखा है? r1 जरूरी नहीं, r भी लिख सकते हैं, बट h1 लिखा है तो r1 भी लिखा है. Is it clear to all of you? Now h1 क्यों? Because cuboid में already h आता है. Now cuboid का हाइट और सिलेंडर का हाइट अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर h1 आ गया. Is it clear? Fine. Okay. Now, आगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का वॉल्यूम इज L into B into H. Now we'll substitute n into पाई का वैल्यू 22/7. R1 मतलब रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, सो R1 स्क्वायर मतलब 1 into 1 into H1. H1 मतलब थिकनेस, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 0.2, तो 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं. is equal to L into B into H. L is 16, B is L and H is 10. So 16 into 11 into 10. तो स्टूडेंट्स हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, तो n को अकेला रखेंगे और बाकी सारे नंबर्स को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस. n को अकेला अगर रखते हैं तो 22/7 अगर उधर चला गया तो 7 would go to the numerator and 22 would go to the denominator. Same way here 2/10 अगर उधर चला गया तो 2 will go to the denominator and 10 will go to the numerator. Is it clear? So n is equal to 16 into 11 into 10 into 10 into 7 upon 22 into 2. Okay? Done? Yes, Sahil from Takshila, I will clarify your doubt as well. Okay? I didn't understand what's your doubt, but I will clarify. 2 ones are 2 5s are, 11 ones are 11 2s are, 2 ones are 2 8s are.
So now n is equal to 8 into 10 into 5 into 7. Now if you multiply this, yes, multiply करके देखो. If you multiply, the answer is 2800, जो already बहुत सारे बच्चों ने दिया है. That's very good, all of you. Yes, okay. Done. So now it's very clear कि कितने coins बने हैं? 2800 coins. So now यश अंबेकर, इसका कोई यूनिट नहीं होगा. Your answer is wrong then if you put unit, because it's a number. नंबर का कोई भी यूनिट नहीं है. नंबर का यूनिट बिल्कुल नहीं होता. It's only a number. Is it clear to all of you? Done. Fine. So number of coins made are 2800. Clear to all of you? The students, I can see many of them are discussing about doubt. मेरा ये doubt है, मेरा वो doubt है. I have told it to you all. I cannot solve each and every child's doubt right now. मैंने कुछ select किए हैं sums. उसमें से अगर luckily आपका doubt होगा तो fine. But don't feel unlucky. आज रात तक सारे बच्चों के doubts हम clarify कर देंगे. और हो सके तो आप डाउट सॉल्विंग ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लोगे, आपके सारे डाउट वहां पर क्लियर हो जाएंगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Diagrams, figures are not compulsory to draw. Okay. Now the next sum, the curved surface area of cylinder is 440 centimeter square and its radius is 5 centimeter. Find its height. Why I'm telling you all to stop messaging? The reason is मैं जो सम सिखा रहा हूँ उस पर आपका ध्यान नहीं है, फिर आप टाइपिंग में लगे हो. सो इस डाउट सॉल्विंग लेक्चर, रिवीजन लेक्चर का कोई मतलब नहीं है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो आपके बहुत सारे अलग अलग डाउट्स हो सकते हैं. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, सबका अलग अलग दिमाग चलता है. वी विल गिव कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग, डोंट वरी एट ऑल. बट अभी जितने मैं सब सिखा रहा हूँ वो कल टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा ना हो कि कल आप पछताएंगे, कल ध्यान देना चाहिए था लेक्चर में. I again request all of you all, stop texting. आप अभी के लेक्चर पर ध्यान दो. आपके सम्स इस बार अगर नहीं होंगे फिर व्हाट्सएप कर देना, आपके वो सम्स भी हम सॉल्व करा के देंगे. ओके, फाइन. राइट. सो नाउ इफ यू सी, the curved surface area of cylinder is given to us and its radius is also given to us. So this is the figure. For a cylinder, radius is given 5 centimeter. So we have written radius as 5 centimeter. Now curved surface area. अब radius का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है. Curved surface area is given, तो curved surface area का फॉर्मूला है. So curved surface area is given 440. तो tell me what is the formula for curved surface area? Because हमें find क्या करना है? Height. So curved surface area का फॉर्मूला is 2 pi RH. बराबर है ये. कर्व सरफेस एरिया दिया है 440 इज इक्वल टू 2 पाई का वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करना है. क्यों नहीं करना है? बिकॉज ऑप्शंस में देखेंगे तो 3 ऑप्शन पाई एज इट इज है. तो जब जरूरत होगी तभी देखेंगे, अभी फिलहाल पाई ऐसे ही रखेंगे. आर का वैल्यू 5 और एच पता नहीं है, एच विल रिमेन एज इट इज. इज इट क्लियर? सो नाउ हमें एच का वैल्यू फाइंड करना है. So 2 into 5 is 10, 10 into pi into h. अब h फाइंड करना है तो h को अकेला रखेंगे. So 10 pi अगर लेफ्ट हैंड से चला गया तो डिवाइड हो गया, is equal to h. अब 0 0 will get cancel. So आंसर क्या आया? 44 upon pi. So h का वैल्यू is 44 upon pi. Is this matching with any of the options? Yes, it is matching with option A. So we can say our option A is correct. Again, I would like to tell all of you all, MCQ based question अगर आता है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है. मेन क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखना है. एंड ऑप्शन A 44 upon pi इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है. Is it clear to all of you? Fine. Now next, this sum. Practice set का 7th sum. A cylindrical bucket of diameter 28 centimeter and height. Yes, Prajwal from Saidham. I'll go back for your doubt.
पाई कैसे जुड़ा? पाई जुड़ा नहीं बेटा, 10 इंटू पाई जो इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड में था वो राइट लेफ्ट हैंड साइड चला गया तो डिवाइड हुआ। इज इट क्लियर? मनस्वी फ्रॉम विक्रोली, बेटा अभी मैंने क्लियर किया, ऑप्शन में पाई ऐसे ही रखा था, दैट्स व्हाई वी डिडंट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पाई। अगर ऑप्शन में पाई का वैल्यू नहीं होता, मतलब पाई रखा है दिखता ही नहीं था, तो हम पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते। ओके फाइन। now ये सिलेंडर है जिसका डायमीटर 28 मतलब रेडियस 14 एंड हाइट इज 20। now this cylinder is completely filled with sand, ये बोला गया है। okay now when the sand in the bucket was poured on the ground, the sand got converted into shape of a pore. if you remember I said it to you all, ये सम सिखाते वक्त मैंने बोला था आप कोई भी चीज ऐसा पोर करोगे, जैसे घर में चावल हो गेहूं हो, अगर वो जमीन पे पोर करोगे तो इट विल टेक अ शेप ऑफ कोन। तो यहाँ पर भी when the sand in the bucket was poured on the ground, the sand got converted into shape of a cone. Is it clear? If the height of the cone was 14 centimeters, so cone का height दिया है 14, what was the base area of the cone? तो हमें find क्या करना है? Base area. अगर कोन का बेस देखेंगे, कोन का बेस है सर्कल, आई रिपीट कोन का बेस है सर्कल, and circle का area is pi r square. That's why we have written the base area is pi r 2 square because there are two objects. Cylinder का radius r1 तो cone का radius r2. So base area will be pi r 2 square. Is it clear? Fine. Now we know the cylindrical bucket which was filled with sand was emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. मतलब सिलेंडर के अंदर जो कुछ था वो हमने पूरा जमीन पर डाल दिया, मतलब सिलेंडर के अंदर सैंड था, वो सैंड हमने जमीन पर डाला। सो सैंड वाज इन द सिलेंडर, इन, आई टोल्ड इट अर्लियर, इफ एनीथिंग इज इन द ऑब्जेक्ट दैट मींस वी हैव टू डील विथ वॉल्यूम। सैंड वाज इन द सिलेंडर, therefore volume will come. Is it clear to all of you? So here what we can say, what is the relation between cylinder and cone here? We can say the relation is volume of cylindrical bucket and volume of cone. इन दोनों के बीच का relation हम बता सकते हैं कि they both are equal. Is it clear? Very good, Yash. So volume of cylindrical bucket is equal to volume of cone. Perfect. Now volume of cylindrical bucket मतलब हमें volume of cylinder पहले पता होना चाहिए. What is the formula for volume of cylinder? Yes, cylinder का formula pi r square h. तो यहाँ पर radius r1 है, height is h1, so pi r1 square h1. And what is the formula for volume of cone? Volume of cone is 1/3 pi r square h. But if you see radius r2 बोला है, height h2, तो 1/3 pi r2 square h2. अब देखते हैं हमें क्या क्या पता है। देखो सब में सिलेंडर के बारे में अगर देखते हैं तो सिलेंडर का डायामीटर दिया है 28 मतलब रेडियस पता है 40, हाइट दिया है सिलेंडर का 20 मतलब सिलेंडर का रेडियस पता है, हाइट पता है। अगर कोन के बारे में देखेंगे तो कोन का हाइट पता है 14, सो h2 पता है, रेडियस पता नहीं है। Is it clear to all of you? So now what we know, the volumes are equal, so we'll go accordingly. Now we know that volume of cylindrical bucket is equal to volume of cone, so formulas भी equal होंगे। pi r1 square h1 is equal to 1/3 pi r2 square h2। अब यहां पर एक मिस्टेक बच्चे करते हैं जो मैं अभी बताने वाला हूं। बच्चे लोग पाई पाई कैंसिल करेंगे, डोंट डू दैट मिस्टेक, बिकॉज इस सम में हमें कोन का बेस एरिया फाइंड करना है, कोन का बेस एरिया, एंड कोन का बेस एरिया इज पाई r2 स्क्वायर, तो पाई हमें लगने वाला है, सो पाई पाई दोनों जगह का कैंसिल मत करना। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r1, r1 का वैल्यू 14, सो r1 स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, h1 is 20 is equal to 1/3 into
पाई एज इट इज, R2 स्क्वायर एज इट इज। समझा होगा इसका वैल्यू क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट किया। देखो यहाँ पर पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया बिकॉज हमें कोन का बेस एरिया चाहिए। कोन का बेस एरिया इज पाई R2 स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का जरूरत नहीं है। विल कीप पाई R2 स्क्वायर एज इट इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इज इट क्लियर? इनटू H214 जो क्वेश्चन में दिया है। अब हमें पाई R2 स्क्वायर, ये पाई R2 स्क्वायर अकेला रखना है, अकेला, बाकी सारे नंबर्स को दूसरे साइड में शिफ्ट करना है। तो पाई R2 स्क्वायर एज इट इज, मतलब 3 जो डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा एंड 4 जो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स विल रिमेन एज इट इज, 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 20, इसमें कोई चेंज नहीं। बट अब ये 3 डिवीजन उधर गया तो मल्टीप्लीकेशन एंड 14 उधर गया तो डिवीजन, सो इंटू 3/14। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब कैंसिलेशन देखो, 7 1 जा 7 2 जा, 14 1 जा 14 1 जा, so pi R2 square is equal to 22 into 2 into 20 into 3. Now if you multiply this, चलो मल्टीप्लाई करके आंसर चेक करो। आंसर कुछ बच्चों ने ऑलरेडी भेजा है, आई नो। यस, आंसर इज 2640 स्क्वायर सेंटीमीटर। गौरव, आई हैव बीन टेलिंग यू ऑल। शुभम फ्रॉम घाटकोपर, यस, गौरव ने थोड़ा लेट टाइप किया, दैट्स वेरी गुड। कभी भी याद रखना, वी हैव टू टाइप विथ यूनिट्स, तो हमेशा याद रहेगा आपको। आपको ये सम का इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि ये सम में पाई पाई कैंसिल नहीं करना है, बिकॉज हमें पाई R2 स्क्वायर एज इट इज रखना है। तो ये सम इसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इज इट क्लियर? सो एरिया ऑफ बेस ऑफ द कोन इज 2640 स्क्वायर सेंटीमीटर। हर्ष फ्रॉम साईधाम, चेक करो आपका आंसर गलत हो गया। यस, लक्ष्य कुमार फ्रॉम घाटकोपर, आई टोल्ड यू ऑल 3/14 कैसे आया बेटा, आप ध्यान नहीं देते। मैंने क्लियरली बताया था 3 डिवीजन में है, उधर गया तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा एंड 14 मल्टीप्लीकेशन है, इधर आया तो डिवीजन हो जाएगा। सो 3/14। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? यस यस, रमन फ्रॉम DN नगर, आपको मैंने क्लियरली बताया था पाई पाई कैंसिल क्यों नहीं किया। पाई कैंसिल करेंगे तो आपको R2 का वैल्यू मिलेगा और हमें R2 का वैल्यू नहीं चाहिए, हमें बेस एरिया ऑफ कोन चाहिए। आप अननेसेसरी सम को लेंथी करोगे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? फाइन। Sahil from Takshila, the paper format is same like algebra, don't worry. Okay, board format. And why to worry about paper format? सम जो आज के लेक्चर में सम सिखा रहा हूं, अगर ये ध्यान देके समझा, आपका लाइफ इजी है। याद रखना है मेरा ये बात, कल पछताओगे, कल बोलोगे सर इतना बता रहे थे पर हमने ध्यान नहीं दिया। मेरा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सबको, आज के लेक्चर में जो जो सिखा रहा हूं ना, वो सारे सम्स एकदम अच्छे से करना, इसी से रिलेटेड सम्स है। सो नॉट टू वरी, दैट्स व्हाई ये रिवीजन डाउट सॉल्विंग लेक्चर अकॉर्डिंगली लिया है। Now this is a very important sum, ये टॉय का सम है। A toy is a combination of cylinder, hemisphere and a cone. 3 ऑब्जेक्ट्स है, each with radius 3 cm, सबका रेडियस 3 cm है। Height of the conical part is 4 cm and height of the cylinder is 40 cm. Find the total surface area of the toy. Now students, please understand this. Total surface area of the toy. Now this toy is made up of 3 different objects which are not detachable. इसको तोड़ के अलग नहीं देख सकते, they are completely attached, fixed है। तो जब टॉय का टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो हम वही सरफेस लेंगे जो हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। So here the total surface area which you can feel, which you can touch, is the curved surface area of all 3 objects. Is it clear to all of you? So now
total surface area of toy is curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. देखो बहुत सारे बच्चों को यही डाउट आता है. यस मोरबिका, वेरी गुड. सबका टोटल सरफेस एरिया मतलब यहाँ पर बच्चे सोचते हैं कि टॉय का टोटल सरफेस एरिया मतलब सबका क्यों नहीं टोटल, सबका टोटल क्यों नहीं लेने का, बिकॉज मैंने पहले भी क्लियर किया था, अभी भी क्लियर कर रहा हूं. ये तीनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिटैचेबल नहीं है, मतलब कोन को अलग नहीं कर सकते और उसके बेस पर ऐसा टच करके नहीं देख सकते. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो कोन, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर दे आर अटैच्ड, तो हम टच कर सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया को. So total surface area is nothing but curved surface area of all the three objects. Is it clear? So now curved surface area of cone formula पता है, yes pi r l. Curved surface area of cylinder formula 2 pi r h, and curved surface area of hemisphere formula 2 pi r square. Is it clear? So now please understand, सबका रेडियस सेम है, each with radius 3, तो सबका r ही रहेगा, r1 r2 कुछ नहीं लेना है. सिलेंडर का हाइट और कोन का हाइट अलग है, इसलिए सिलेंडर का कैपिटल H लिया है. I hope all of you have understood this. So now सबका रेडियस हमें पता है, सिलेंडर का हाइट भी पता है, तो कैपिटल H भी पता है. हमें अगर कुछ पता नहीं है तो हमें पता नहीं है स्लांट हाइट, L पता नहीं है. सो वी नीड टू फाइंड आउट L फर्स्ट. नाउ L फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, एंड वी ऑल नो द फॉर्मूला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड स्लांट हाइट. The formula for slant height is L is equal to under root of r square plus h square. ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है. अंडर रूट r का वैल्यू ये 3 सेंटीमीटर, h का वैल्यू स्मॉल h है, स्मॉल h मतलब कोन का हाइट है 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 9 plus 16 is 25, so root 25 and root 25 is 5. So slant height लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर. Is this very clear? तो L भी मिल गया. Now we can find out total surface area. Now total surface area for toy is curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. तो सबका फॉर्मूला pi r l plus 2 pi r h plus 2 pi r square. अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, we can take out pi common because add हो रहा है. पिछले सम में pi लेफ्ट हैंड साइड में था और राइट हैंड साइड में था. When the same terms are on either side we cancel. बट पिछले सम में पाई क्यों कैंसिल किया क्या बताया था मैंने आपको. यहाँ पर सारे पाई एक ही साइड में है, राइट हैंड साइड में, तो वी कैन टेक पाई कॉमन, आर भी कॉमन है, सो पाई भी कॉमन, आर भी कॉमन, सो वी कैन टेक पाई आर कॉमन. सो ब्रैकेट में क्या बचा, पहले टर्म का L, दूसरे टर्म का 2 और H, और तीसरे टर्म का 2 और R. इज दिस वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? यस. Now please pay attention. Again, I would like to repeat. Gaurav from Chembur, you requested, I will repeat. देखो ध्यान से, पाई आर इधर है फर्स्ट टर्म में, पाई आर सेकेंड टर्म में भी है, और पाई आर थर्ड टर्म में भी है. तीनों टर्म में पाई आर है, इसलिए पाई आर कॉमन लिया है हमने. सो इधर क्या बचा L, इधर क्या बचा 2 और H, और इधर क्या बचा 2 और एक R बचा. तो इधर ये फॉर्मूला आ गया. इज इट वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, वी कैन सॉल्व विदाउट टेकिंग कॉमन ऑल्सो. मतलब अगर कुछ बच्चों को लगता है सर हमने समझा नहीं कॉमन लेने का, हमने सब जगह पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, चलेगा? चलेगा, ऑफ कोर्स चलेगा, बट सम लेंथी हो जाएगा. दैट्स इट. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस. प्रभव फ्रॉम विक्रोली, व्हाई H इज कैपिटल. देखो इस फिगर में दो हाइट आते हैं, एक सिलेंडर का हाइट आता है और एक कोन का हाइट आता है. तो कोन का हाइट इज स्मॉल h एंड सिलेंडर का हाइट इज कैपिटल H. गॉट इट? ना पाई का वैल्यू 3.14 दिया है सब में. ओके. R का वैल्यू 3, ब्रैकेट में L का वैल्यू 5,
प्लस 2h, h का वैल्यू 40, तो 2 इंटू 40 प्लस 2 इंटू आर, आर का वैल्यू 3। अब एज पर द BODMAS रूल ब्रैकेट पहले ओपन करना है और ब्रैकेट सॉल्व करते वक्त मल्टीप्लीकेशन पहले करना है, फिर एडिशन। आई रिपीट अगेन, BODMAS के रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट ओपन करना है, मतलब ब्रैकेट ओपन करने से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, एंड ब्रैकेट के सॉल्विंग में पहले मल्टीप्लीकेशन करना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 5 + 2 7 लिखते एंड फिर 7 × 40 करते, विच इज रॉन्ग। आपको पहले मल्टीप्लीकेशन करना है, पहले मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन। ओके, सो 3.14 × 3 × 5 प्लस 2 × 40 is 80 प्लस 2 × 3 6। सबको ये बात समझा? पहले मल्टीप्लीकेशन करना फिर एडिशन। 3.14 × 3 as it is, and 5 + 80 + 6 is 91. Now if you multiply this, we get the answer 857.22 centimeter square. Q square because it is area, total surface area. I hope all of you have understood this. कुछ डाउट किसी को? Yes, okay. Now, I hope all of you have यहाँ पर पाई क्यों कॉमन लिया, आर क्यों कॉमन लिया? बिकॉज यहाँ पर पाई एक ही साइड में, सारे अलग अलग साइड में नहीं। हाँ, एक पाई लेफ्ट हैंड में, एक पाई राइट हैंड में होता तो पाई कैंसिल करते। ओके, यस, अथर्व फ्रॉम घाटकोपर, वी कैन नॉट कैंसिल पाई। मैंने अभी बताया आपको, पाई कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज सारे पाई एक ही साइड में है, राइट हैंड साइड में। अगर पाई लेफ्ट हैंड में हो और पाई राइट हैंड में हो तो ही कैंसिल होता है। अगर पाई का वैल्यू नहीं दिया होगा तो वी टेक 22/7 आदिति। ओके, थोड़ा आंसर में चेंजेस जरूर आता है, दैट इज ओके। ओके, दैट इज ओके। 858 आंसर आता है तो भी दैट इज ओके, बट इस सब में पाई का वैल्यू दिया था इसलिए 3.14 ही लेना होगा। ओके, नाउ दिस सम। बेटा स्लांट हाइट का फॉर्मूला ही पाइथागोरस से आया है। ओके, सेंथिल फ्रॉम चेंबूर, पाइथागोरस से ही स्लांट हाइट का फॉर्मूला आया है। ओके, now this is a very very important sum. I request all of you stop typing messages and asking. आप प्लीज छोटे छोटे इश्यूज पर ध्यान मत देना, ये सम्स पर ध्यान देना, बिकॉज सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल, कल के टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आज का लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट था। क्वाड्रिलैटरल PQRS इज रेक्टेंगल। ओके, उसमें PQ का वैल्यू दिया है 14 एंड QR का वैल्यू दिया है 21। सो इट्स वेरी क्लियर, लेंथ इज 21, ब्रेड्थ इज 14। लेंथ हमेशा बड़ा होता है, ब्रेड्थ छोटा होता है। ओके, फाइंड द एरियाज ऑफ द पार्ट्स X, Y एंड Z। तो सबसे पहले X का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर सेक्टर होगा क्या सम में? ये देखो सेक्टर का बेस्ड सम आ रहा है अभी। सो प्लीज पे अटेंशन नाउ। जो X पार्ट है, X पार्ट इज नथिंग बट सेक्टर, जिसका सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर है। अब रेडियस 14 कैसे? सेंटर Q है तो सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है एंड Q से QP रेडियस 14 सेंटीमीटर ले सकते हैं। सो X is a sector with central angle 90 degree and radius 14. So what is the formula for area of sector? We know area of sector is theta upon 360 into pi r square. So we'll find out the part X first. Area of part X is equal to theta upon 360 into pi r square. थीटा का वैल्यू 90 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो वी कैन टेक 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस इज 14, सो 14 इंटू 14। ओके, यश फ्रॉम विक्रोली, प्लीज डू नॉट डिस्कस ऑल सच थिंग्स। बेटा टेक्स्ट बुक में
पाई का वैल्यू चेंज, ये सब कुछ इट्स ओके। जो हम बता रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना। इफ वी टेक 22/7, इफ यू टेक 3.14, इट डिपेंड अप टू अस। अब देखो यहाँ पर रेडियस 14 दिया है, तो बट ऑब्वियस हिंट इज 22/7। अगर रेडियस 7 के मल्टीपल में या 22 के मल्टीपल में नहीं होगा तो वी टेक 3.14, या जो दिया है वो लेते हैं। इज इट क्लियर? खुशी बोरा, प्लीज चेक योर कनेक्शन बिकॉज स्क्रीन आपको दिख नहीं रहा है, बट देन अदर्स कैन सी। Now 0 0 cancel, 9 1s are 9 4s are 7 1s are 7 2s are 2 1s are okay, 2 2s are 4, 2 11s are 22, 2 1s are 2 1s are. So now it is 11 into 14. नीचे कुछ नहीं बचा है, so tell me 11 into 14 कितना होता है? So it is 154 centimeter square. So we have found out area of part X. Got it? Now the next thing which we have to find out is area of part Y. Clear? Yes, Krishna from Chembur, beta, it is not mentioned that X is a sector, but हमें तो उतना दिमाग में चलता है ना देख के फिगर कि Q सेंटर रख के QP रेडियस लेके अगर हमने फिगर बना दिया तो वो सेक्टर बनता है। इज इट क्लियर? फाइन। नाउ प्लीज पे अटेंशन। अब पार्ट Y को ध्यान देंगे तो पार्ट Y इज ऑल्सो अ सेक्टर जिसका सेंटर है 90 डिग्री सेंट्रल एंगल। बट इफ यू पे अटेंशन टू द फिगर, ध्यान से फिगर को देखोगे तो यू विल क्लियरली सी, ओके, आपको क्लियरली दिखेगा कि रेडियस पता नहीं है। अगर R सेंटर है, RT रेडियस है या RB रेडियस है, दोनों रेडियस पता नहीं है हमको। RT का भी वैल्यू पता नहीं है और RB का भी वैल्यू पता नहीं है। तो एरिया ऑफ सेक्टर Y फाइंड करने के लिए पहले रेडियस पता होना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे। Now we know सेक्टर X के लिए QP रेडियस है, QT रेडियस है, सो दोनों रेडिया इक्वल होते हैं, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। सो QP 14 है तो QT would also be 14 सेंटीमीटर। आपको पता चलेगा अभी QT फाइंड क्यों किया। Now QT एंड RT, आई रिपीट, ध्यान देना, QT एंड RT दोनों को ऐड किया तो QR मिलता है। So QR is equal to QT plus RT. ध्यान देना, QR is equal to QT plus RT. QR का वैल्यू 21 है, QT का वैल्यू अभी भी मिला है 14, RT का वैल्यू पता नहीं। अगर 14 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस 14 हो जाएगा -14। सो RT is equal to 21 minus 14. 21 minus 14 कितना होता है? 7. सो RT 7 सेंटीमीटर। अभी आपको समझा होगा हमने RT क्यों फाइंड किया, बिकॉज RT इज रेडियस ऑफ सेक्टर Y. सो अभी रेडियस पता है और थीटा पता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो नाउ वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ सेक्टर Y. नाउ एरिया ऑफ सेक्टर Y के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला? Yes, formula is theta upon 360 into pi r square. Theta 90 है, so 90 upon 360 into pi. Pi का वैल्यू 22 upon 7. Radius is 7, so 7 into 7. 0 0 cancel, 7 7 cancel. 9 1s are 9 4s are 7 1s are 7 1s are. So 22 into 7 upon 4. Now 22 into 7 is 154. 154 upon 4 is 38.5 centimeter square. So we have got the area of part Y as well. So area of part Y is 38.5 centimeter square. Clear to all of you? Perfect. Now we have to find out area of part Z. So students, I want you to attend properly now. अभी ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप Z को ध्यान से देखोगे,
Okay, now Z is not a proper figure of geometry. अब Z फाइंड करना है तो हाउ विल यू फाइंड आउट Z? तो Z फाइंड करने के लिए सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर Z फाइंड करना है तो Z इज द पार्ट ऑफ विच बिग फिगर? Z is the part of which big figure? Yes, we can clearly see Z is the part of rectangle. Very good. Many of them are repeating and giving the answer. Very good. So सबसे पहले हमें Z ढूंढने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना जरूरी है. So area of part Z is area of rectangle PQRS. इस रेक्टेंगल में से दोनों सेक्टर का एरिया माइनस करो. मतलब क्या करो, दोनों सेक्टर को ऐड करो और जो भी आंसर आता है वो आंसर रेक्टेंगल में से माइनस करो. सो माइनस ब्रैकेट एरिया ऑफ पार्ट x प्लस एरिया ऑफ पार्ट y. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो याद रखना ये ब्रैकेट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो दिस विल बिकम माइनस एंड दिस विल बिकम प्लस. तो ऐसे गलती मत करना, पहले दोनों सेक्टर का एरिया ऐड करना और वो दोनों एरिया का टोटल रेक्टेंगल में से माइनस करना है. दिस इज एन इक्वेशन विच विल रिक्वायर फर्दर. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी तक फाइंड नहीं किया हमने, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं. वी नो द फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एंड मैंने क्लियरली बताया था लेंथ एंड ब्रेड्थ. सो लेंथ 21 into 14. So area of rectangle PQRS multiply करो 14 into 21 is 294 centimeters square. Clear? Now area of rectangle मिल गया. So can we use equation number 1, this highlighted one? So area of part Z is area of rectangle. Area of rectangle is 294 minus area of part X is 154 plus area of part Y is 38.5. So is equal to 294 minus ये दोनों का टोटल करो तो 192.5. Now 294 minus 192.5, the answer is 101.5 centimeter square. वैभव फ्रॉम विक्रोली, आंसर चेक करना, छोटा छोटा गलती होता है. ओके, सो एरिया ऑफ पार्ट Z is 101.5 centimeter square. समझा सबको? इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट था एरिया ऑफ पार्ट Z. ओके, प्रज्वल फ्रॉम साईधाम, आपने 14 सेंटीमीटर रेडियस कैसे लिया x का? इट इज क्लियरली अंडरस्टूड बेटा. Q इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, या सेंटर ऑफ द सेक्टर के लिए सेंट्रल एंगल Q है, तो QP विल बी द रेडियस ना. तो QP रेडियस लेके वो सेक्टर बना सकते हैं. आप ये फिगर ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेक्टर बनता कैसे है. आपने QP रेडियस लिया तो ही वो सेक्टर बन सकता है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फाइन. सो नाउ सेक्टर का भी एक सम हो गया. अभी सेगमेंट का एक सम लेते हैं. ये सम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने सेगमेंट का एक सम रिक्वायर्ड था कल के लिए टेस्ट के लिए, तो आपको सब कुछ कवर किया. सेक्टर कवर किया, सेगमेंट कवर किया, क्यूब कवर किया, क्यूबॉइड कवर किया, सिलेंडर कवर किया, कोन कवर किया. इज इट क्लियर? सो प्लीज मेक श्योर दैट आपको अब ये सेगमेंट का सम बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्विंग के लिए. अब ये एक्स्ट्रा सम था जो मैंने ले लिया है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ सेगमेंट? याद है ना, मैंने एक सम में आपको बताया था एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला. एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला r स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2. Is it clear to all of you? Yeah. So this is the formula. Now, R Kef from DN Nagar, please wait better. Now let us complete this sum first. R square. Now what is the value of R? You can see in the figure, radius is 7.5. So 7.5 whole square. Pi theta. पाई का वैल्यू ब्रैकेट में दिया है 3.14. देखो, आई टोल्ड इट यू ऑल, देयर इज नो नीड ऑफ ड्राइंग द फिगर ऑफ मेंसुरेशन.
Okay, 3.14 into theta, theta is 30 upon 360 minus sin theta. अब sin theta मतलब sin 30 upon 2. Ananya, please ignore the question number. Question number is not important for us. Sum is important. Okay. 31 za 30, 12 za. So 7.5 into 7.5, 56.25. 7.5 into 7.5 multiply करेंगे तो आंसर आता है 56.25. Now bracket में 3.14 upon 12 minus, now sin 30 upon 2. Upon 2 मतलब half. Upon 2 मतलब half. So we'll write down that minus half first. तो ये upon 2 जो है वो पहले लिखा 1 upon 2 into sin 30. Now sin 30 का value is also 1 upon 2. So did you understand this? I repeat again this part, please pay attention. Sin 30 upon 2. Upon 2 का मतलब है 1 upon 2. So upon 2 मतलब 1 upon 2 लिखा into sin 30. Sin 30 का value is 1 upon 2. So वो 1 upon 2 multiply किया. Is it very clear? 56.25 into 3.14 upon 12 minus 1 1s are 1, 2 2s are 4, 1 upon 4. Clear? Now LCM simple होने के लिए हमें डिनोमिनेटर को 12 करना है. ये 12 तो है ही ऑलरेडी, इधर भी 12 करना है. ना 4 को अगर 12 करना है तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अच्छा, बट अपने मर्जी से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा. तो नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए. इज इट वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? अच्छा, ये क्यों किया समझा सबको? क्योंकि दोनों जगह डिनोमिनेटर को 12 करना है ताकि एलसीएम का तकलीफ नहीं हो. अगर दोनों जगह 12 करना है तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है. सो नाउ 56.25 into 3.14 upon 12, ओके, minus 3. अब ये समझा आपको कैसे हो गया? बिकॉज 4 3s are 12, तो 12 is the common denominator now. तो 12 हो गया कॉमन डिनोमिनेटर. 3.14 as it is minus 1 3s is 3. Understood this? Yes, अथर्व फ्रॉम घाटकोपर. एरिया ऑफ सेगमेंट का दूसरा भी एक फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज आल्सो राइट. बट इस सब में हमें एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं करेंगे बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर. ओके, डायरेक्टली करना है. सो 56.25 into 3.14 minus 3. 3.14 minus 3 is 0.14 upon 12. Got it? Now, अभी क्या करना है ना, सिंपल कैलकुलेशन. कभी भी डेसिमल को निकालना है. अगर डेसिमल को निकालना है तो अकॉर्डिंगली जीरोस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. सो 5625 अपॉन 100. 2 डेसिमल निकाला तो 100 से नीचे डिवाइड किया. वैसे ही 0.14 को अगर 14 किया तो नीचे 100 आ जाना चाहिए. तो इंटू 14 अपॉन 12 इंटू 100. क्लियर ऑल ऑफ यू? डन. अब 2 6 जा 2 7 जा. Now 5625 into 7. 5625 into 7 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है, देखो. ओके, प्लीज मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आंसर क्या आएगा, 39375. 5625 into 7 का आंसर आता है 39375 और नीचे 100 into 100 into 6 as it is. Now what I want from you all, अभी मैं आपको काम देता हूं, ध्यान से सुनना. 39375 को इस न्यूमरेटर को 6 से डिवाइड करो. कम ऑन, 39375 को 6 से डिवाइड करो एंड टेल मी द आंसर. जितना टाइम मैसेजेस करने में, टेक्सटिंग करने में डालते हैं, अभी कैलकुलेशन करो. शुभम वेरी गुड, बट कैलकुलेशन किया कैसे? इतना फास्ट कैलकुलेशन आया कैसे शुभम?
कैलकुलेटर से नहीं चलेगा वरुण, आकृति, कैलकुलेटर से नहीं चलेगा, प्रॉपर कैलकुलेशन चाहिए। शुभम बोलते हैं नो कैलकुलेटर, इफ यू हैव डन विदाउट कैलकुलेटर वेरी गुड। प्लीज प्लीज सब लोग टाइप करो, मुझे आंसर चाहिए। समर्थ फ्रॉम डीएन नगर, प्लीज चेक योर आंसर अगेन बेटा। अच्छा, अभी सब लोग जो आंसर में यूनिट टाइप कर रहे हैं, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, तो यहां पर यूनिट नहीं आना चाहिए। ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। 6562.5 डिवाइडेड बाय 10,000, 6 से डिवाइड किया तो बचा नीचे 200, 100 into 100 is 10,000। इज इट वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? अगर ये 4 जीरो हमें निकालने हैं तो डेसिमल 4 पॉइंट आगे आ जाएगा, तो 2, 6, 5 और 6 ये 4 है, तो पॉइंट 6 के पहले आ जाएगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो आंसर इज 0.65625। बट नाउ इफ यू सी दिस, हमेशा थर्ड डेसिमल चेक करो। थर्ड डेसिमल अगर 5 या 5 से बड़ा हो, अगर थर्ड डेसिमल 5 या 5 से बड़ा हो तो वी ऐड 1 इन द प्रीवियस डिजिट। आई रिपीट अगेन, अगर थर्ड डेसिमल 5 या 5 से बड़ा हो, वी ऐड 1 इन द प्रीवियस डिजिट। तो प्रीवियस डिजिट इज 5, तो 5 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो आंसर इज 0.66 सेंटीमीटर square. Is it very clear to all of you? So we have found out the area of segment. So area of segment is 0.66 square centimeter. Is this very clear to all of you? So students, what we have done is, this was the last sum for today. सब लोग ध्यान से सुनना, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबको। आज के सम में हमने जितने भी सम्स किए हैं वो सारे के सारे सम्स कल के टेस्ट से रिलेटेड सम्स है। तो आज जितने भी सम्स हमने किए वो सारे सम्स का प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो अच्छे से। इज इट वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? सो प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस ऑल दीज सम्स अगेन। तो कल का टेस्ट इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। बोले कि यार बहुत अच्छा हुआ ये, इट। अभी दूसरा बात, ऐसा हो सकता है कि मैंने जो जो सम्स लिए थे आज के लेक्चर के लिए, आपका डाउट इसमें नहीं था, आपका डाउट अलग है और कुछ दूसरा सम है, या दूसरे सम का कोई भी क्वेरी है। देखो, वी आर अवेलेबल टुनाइट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। आप प्लीज अपने हेड को, हेड के ग्रुप में, मतलब जो सेंटर का ग्रुप है वहां पर आपका क्वेरी पोस्ट करना, हम आपके सारे क्वेरी रिजॉल्व कर देंगे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो ऐसा मत सोचना कि मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ, बिकॉज अल्टीमेटली स्टूडेंट्स वी आर ह्यूमन बींग्स। मैंने पूरे मेंसुरेशन चैप्टर खत्म करने को 10 घंटे लगाए, तो 10 घंटे का चैप्टर 1 घंटे में नहीं हो सकता, फिर भी 1 घंटे में हमने कुछ कवर कर दिया है। ओके, सो मेक श्योर दैट यू डू वन थिंग, आज के लेक्चर्स का पूरा जितना भी सम्स है वो कवर करना, एंड जो भी क्वेरीज है वो पोस्ट करना व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, अच्छा रिशिता, आई जस्ट चेक रिकॉर्डिंग आज के लेक्चर का, अगर रिकॉर्डिंग हुआ है तो इमीडिएटली वो रिकॉर्डिंग में शेयर करने को बोलता हूँ। डन? या यस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मेजर सेगमेंट? ओम मसूरकर, मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला इज एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। I repeat again, area of major segment is equal to area of circle minus area of minor segment. Okay? Yeah? यज्ञेश from DN नगर, लास्ट बार क्या समझो बेटा, कौन सा पार्ट?
Yes, Adarsh, I'll tell. Don't worry. Adarsh, he has a very good doubt. WhatsApp ग्रुप पे ओनली एडमिन्स कैन सेंड द मैसेज, ऐसा है. ओके, तो बेटा आपको करना क्या है, आपके पास अपने हेड का तो नंबर है ना, अभी समझो किसी सेंटर हेड का नंबर ग्रुप में है, उस पर आप पोस्ट करते जाना. ओके, दे विल पोस्ट इन द ज्योमेट्री ग्रुप. डन. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर माइनर आर्क? ये सारे फॉर्मूले हैं बेटा. माइनर आर्क का कोई फॉर्मूला, मतलब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर माइनर आर्क? मतलब लेंथ ऑफ माइनर आर्क. लेंथ ऑफ आर्क इज theta upon 360 into 2 pi r. So length of arc is theta upon 360 into 2 pi r. So length of major arc is circumference minus length of minor arc. I repeat again, length of minor arc is theta upon 360 into 2 pi r. So accordingly, length of major arc is circumference minus length of minor arc. Okay. बेटा अभी सारे फॉर्मूले एक एक करके सब पूछोगे, इट वुड बी इजी फॉर मी आल्सो. ओके, आप देखना ना, टेक्स्ट बुक देखना, अपने सारे रिकॉर्डिंग्स जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वो सारे देखना, उसमें सब आई हैव डन वन थिंग. मुझे पता है आपको जहां जहां डाउट्स आते हैं वो मैंने एम्फसाइज किए कि डाउट्स आते हैं आपको वहां पर. ओके, तो वो रिकॉर्डिंग में क्लियर आपको समझेगा, बट अभी ये टाइम नहीं है रिकॉर्डिंग देखने का. डू वन थिंग, आज के लेक्चर का रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनना, मैं भिजवाता हूँ आज के लेक्चर का रिकॉर्डिंग. ओके, डन. ओके, हेक्सागोन का जो सम है वो सॉल्व एग्जांपल है, फिलहाल के लिए अभी टेंशन होगा तो भेज दो व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसका सॉल्विंग मैं करा के देता हूँ. ओके, और अगर फिलहाल कल के लेक्चर के लिए टेस्ट के लिए नहीं भी करोगे तो चलेगा, इट्स ओके. डन.